Hello, welcome to you all student. Today we are going to learn our new unit. Just okay, we are discussing about the rate of the chemical reaction. Just why? Because we are discussing here because we have take the some examples. Yes, which is related to in our day-to-day life, and related to that examples we have discussed belonging to that examples, and we have identified their changes, how the changes takes place and how they require the time for carrying the reaction, and belonging to that time period, to that chemical reaction, to that getting the change. Yes, how many time we have required there, some reactions, some changes we have gets in instantly result, and some changes we have get they required some more time. चलिए बेटा इसी को लेकर yes we have learned here the rate of the chemical reaction. Actually we have learned the different kind of the chemical reaction, and in that reactions we have learned there some reactions are instantly give the result, give the products, but some reaction when they undergo the chemical changes, that time they require some time, they require some specific time period. ठीक है बेटा, means some reactions are the slow and some reactions are the fast, that is instantly takes place. So belonging to that time period to carry the reaction. Yes, okay, we have learned here the rate of the chemical reaction. Yes, and which factors are show the effects on that chemical reaction, and how this factor they increase the chemical reaction, rate of the chemical reaction. So we have learned, go to the detail here. So we have take our first slide. तो देखिए बेटा हम अपनी first slide यहाँ पे लेते हैं simply. So in this first slide I have show here some examples, yes, which are familiar to us. These examples are familiar to us in our everyday life. Actually what we all learn here, तो देखिए बेटा जैसे कि टाइम को लेकर, जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैरिंग द केमिकल रिएक्शंस, एंड दिस रिक्वायर्ड टाइम टू दैट chemical reaction, to carrying the chemical reaction, to undergo the chemical reaction. Yes, and this required time they follow. ठीक है बेटा, and belonging to that required time, yes, we have groups into the जैसे titles as a rate of chemical reaction. That's titles, that is a rate of chemical reaction. चलिए बेटा we have take here the examples. So first example, yes, it's a one common in our day to day life. चलिए common एक example है, जैसे देखिए बेटा, yes we have used the जैसे कि गैस, जैसे गैस सिगड़ी and such like that. When we have cooked any food material, that time we have enlit this gas burner with the help of the lighter, with the help of the lighter. Actually देखिए बेटा वही example यहाँ पे हमें लेना है. कुकिंग द गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन. देखिए बेटा कुकिंग द गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन. जैसे हम इग्निट करते हैं, यस just we have ignited, yes we have inlit it with the help of the lighter. Yes, okay, instantly we have get the fire, instantly we have get the fire. Student तो देखिए बेटा here is one change, here is one have a phenomenon. So such a phenomenon just is a show the instant response. That's okay, in quick, in a millisecond we have just enlit the lighter, instantly fire catch, and we have get the flames, we have get the flames, and this process is a instantly takes place within a millisecond.
and this is one kind of the fast phenomenon, fast change. That is a, देखिए बेटा जो ये reactions होती है, this is also one kind of the reaction, because through that gas burner we have get the methane, that is a biogas, methane released there. Yes, okay, and methane when we have inlet it through the lighter, yes, automatically it capture the fire, just so it's converted into the flame, and that's reaction, that change, that is a change, and this change is an instant change. They require the, जैसे कि they require the millisecond, है ना, मिलीसेकंड के अंदर ही वो रिएक्शन क्या होती है बेटा, कैरी ऑन होती है. दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, यस दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन. चलिए बेटा अभी सेकंड, इन सेकंड एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू द आयरन आर्टिकल्स. देखिए बेटा इन डे टू डे लाइफ में हमने जैसे कि बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स को देखा है ना बेटा, अनुभव करते हैं, यूज करते हैं, है ना बेटा. दीज आर द एप्लीकेबल्स इन आवर डेली लाइफ. यस आयरन and human, they are the correlated to with each other. चलिए बेटा आयरन का ह्यूमन लाइफ में बहुत ही सारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाई देता है. एक्चुअली आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. तो एक्चुअली आयरन अंडरगो दी रस्टिंग, आयरन अंडरगो द रस्टिंग. बट देखिए बेटा सोचिए यहाँ पे, क्या आयरन झट से रस्टिंग प्रोसेस में चला जाएगा बेटा? दैट इज रस्टिंग इज नथिंग बट वी हैव सेड अ गंजनी इन मराठी. यस ओके, दैट इज वन हैव इरोजन्स, जैसे कि गन्स. तो यहाँ पे देखिए बेटा रस्ट होता है, जैसे ये रस्ट झट से होता है क्या बेटा? इंस्टेंट चेंज है क्या रस्ट? बताइए, रस्ट इंस्टेंट चेंज है? रस्ट इंस्टेंट चेंज नहीं है. रस्ट यहाँ पे क्या बेटा, दिस इज अ स्लो प्रोसेस. लेकिन ऊपर वाली जो हमने जैसे कि इग्निट किया, इग्निट करते ही यहाँ पे फायर कैच किया था बर्नर ने, ठीक है बेटा. एक्चुअली वो इंस्टेंट रिएक्शन थी. लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा जो रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स होते हैं, दिस फिनोमिनॉन, यस इट्स अ स्लो फिनोमिनॉन, स्लो चेंज. ये वाला चेंज कैसा होता है बेटा? यहाँ पे स्लो चेंज दिखाई देता है. चलिए बेटा आफ्टर दैट नेक्स्ट दैट इज इरोजन ऑफ द रॉक्स. इरोजन ऑफ क्या बेटा? यहाँ पे रॉक, रॉक का इरोजन होता है. एक्चुअली इरोजन ऑफ द रॉक टेक्स प्लेस टू फॉर्म द सॉइल. चलिए बेटा मैंने यहाँ पे जैसे कि सुबह बताया था कि जैसे इरोजन होता है, देखिए बेटा रॉक का इरोजन होता है बेटा, रॉक कन्वर्ट इनटू द सॉइल. एक्चुअली 1 सेंटीमीटर सॉइल लेयर just performing, they require the how many years? Near about 10 years. They require the 10 years time duration. इतना time duration, लंबा time duration लगता है. जैसे कि इतने 10 years duration के बाद हमें केवल 1 सेंटीमीटर लेयर फॉर्म होता है सॉइल का. देखिए बेटा that process, that is also one phenomenon, that's one how process. This is also one kind of the change. चलिए बेटा, और ये चेंज कैसा है बेटा? दिस इज अ वेरी स्लो चेंज. जैसे यहाँ पे जैसे रस्टिंग की चेंज जैसे स्लो धीरे से होती है, तो यहाँ पे देखिए बेटा रॉक्स इरोजन भी यहाँ पे क्या होता है बेटा? इट्स अ वेरी स्लो चेंज. ये चेंज कैसा है बेटा? स्लो चेंज होता है. चलिए इसके बाद देखिए अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल. देखिए बेटा अल्कोहल वी हो प्रिपेयर्स बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द, जैसे कि जैसे सीरियल्स, pulses, yes, as well as the grains, as well as the fruits, you know, used there. And such cereals, grains, just malt, ठीक है ना बेटा? Yes, we have used some fruits also used for the preparation of the alcohol. That time, these, that is a raw material. Yes, those are the one have a waste food material. Just okay, we have used for the preparing this beverage, just alcoholic products, such like that. Yes, into that products, that is grains, yes, as well as the malt, yes, as well as the different kind of the fruits, we have added salt. जैसे कि we have added Easter, जैसे Easter, yes, yeast, we have added yeast there. जैसे हम उसमें क्या करते हैं बेटा? yeast को add कर लेते हैं. After the adding the yeast, देखिए बेटा एक्चुअली वो जो grains होते हैं, malts होते हैं या fruits होते हैं, yes, this is a part of glucose. This is a part of glucose, and into that glucose we have added yeast, and due to that adding the yeast, the process undergo the, देखिए बेटा process undergoes, that chemical process is carried there, that is a fermentation. Which process they are carried here? Fermentation. देखिए बेटा नोटबुक में हमें यहाँ पे से जैसे कुछ
चेंजेस होते हैं, ऐसे लिखना है बेटा। जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी ऑन होगी, ये फर्मेंटेशन व्हाई, बिकॉज वी हैव कैरी द फर्मेंटेशन ड्यू टू द एडिंग द ईस्ट, ड्यू टू द एडिंग द ईस्ट। if you do not add the yeast, that fermentation is process is not takes place here. चलिए बेटा, we have add the yeast into the glucose. That's okay. Why? Because we have say as a glucose, because for the preparation of the alcohol we use the different kind of the grains, जैसे कि माल्ट होता है, ज्वार होता है ना बेटा, wheat होता है, just different kind of grains we use, as well as fruit also we have used there. And yes, this last product is glucose. उसका last product क्या होता है बेटा? Glucose. And into that glucose we have added the yeast, and due to the adding yeast it converts. देखिए बेटा, it's undergo the process. Which process? That is a fermentation process. Fermentation takes place, and this fermentation takes place. Yes, we have get the अल्कोहल्स, वी हैव गेट दिस अल्कोहल्स हियर. एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे अल्कोहल मिलता है, बट कैन दिस प्रोसेस टेक्स इन इंस्टेंट, जैसे झट से या जल्दी होने वाली प्रक्रिया हमें दिखाई देती है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि फर्मेंटेशन में देखिए बेटा वी रिक्वायर द टाइम पीरियड. चलिए बेटा, अपने घर में भी मम्मी जैसे कि बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी ऑन करती है. जैसे कभी कभी देखिए बेटा, मम्मी को पापड़ बनाने होते हैं या इडली डोसा बनाना होता है, तो देखिए बेटा पहले ही दिन उसे क्या किया जाता है बेटा? जैसे कि मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, उनके इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स को रेडी किया जाता है ना बेटा, उसको भिगोया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्मेंटेशन, इसको हम मराठी में बोलते हैं आंबवणे, है ना बेटा. क्या ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है या विद इन कुछ सेकेंड में या कुछ घंटों में बनने वाली प्रोसेस होती है क्या? नहीं. जैसे फर्मेंटेशन करना हो तो वी रिक्वायर द सम टाइम पीरियड, ठीक है. एंड आफ्टर द टेकिंग दैट complete time period, yes, after the completion of the fermentation, fully fermentation takes place, completion of the fermentation takes place, we have get the result. Actually we have get the product there. Means this kind of the change, yes, which kind of the change here? That is a slow change. देखिए बेटा, स्लो चेंज. केवल देखिए बेटा, हमने पहले जो एग्जांपल लिया था उसी में हमें फास्ट चेंज दिखाई देता था, इंस्टेंटली क्विक एक्शन वहां पे हमें दिखाई देती थी. इग्निशन के बाद झट से फ्लेम हमें वहां पे दिखाई देते थे, बर्न होते हुए दिखाई देता था. लेकिन देखिए बेटा, सेकेंड केस में रस्टिंग भी यहाँ पे स्लो, धीरे से होने वाली प्रोसेस फिनोमिनॉन है, चेंज है. एक्चुअली इरोजन ऑफ द रॉक्स, ये भी यहाँ पे स्लो होने वाली प्रोसेस होती है ना बेटा. बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे जैसे रॉक्स कन्वर्ट इनटू द soil, yes, as well as the alcohol formations, that is a ब्यूरेज जैसे हम बनाते हैं, तो अलग अलग ब्यूरेज बनाने के लिए भी ये भी प्रोसेस कैसी होती है बेटा? जैसे कि फर्मेंटेशन कैरी ऑन होता है, तो इसको भी हमें यहाँ पे देर समय यहाँ पे लगता है. दैट्स अ स्लो प्रोसेस हियर. चलिए बेटा, आफ्टर दैट नेक्स्ट fifth process. Actually in that fifth process, actually देखिए बेटा, जैसे कि effervescence is formed after adding the baking soda, yes, into the test tube containing dilute acid. जैसे हमने कि dilute acid लिया है. चलिए बेटा, यहाँ पे dilute acid के, yes, instead of dilute acid we have used the water. Simply we have used the water here, and we have add the baking soda. What happened? We have get the effervescence. We have get the effervescence. Effervescence is nothing but in Marathi we have says a budbude, bubbles. Bubbles are come out. Yes, okay. And into that bubbles there is a consisting the CO2 gas. उसमें क्या होता है बेटा? CO2 गैस होता है. yes, है ना बेटा. जैसे कि हम बेकिंग सोडा, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमने क्या किया था, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे ही ऐड कर देते हैं तो क्या होगा बेटा? रिएक्शन इंस्टेंटली कैरी ऑन होती है, इंस्टेंटली इन क्विक रिएक्शन, दैट इज अ टेक्स प्लेस इन विद इन मिलीसेकंड. यस, इट इज अ फास्ट. इसका रेट क्या है बेटा? फास्ट रेट रिएक्शन. ठीक है बेटा. जैसे कि देखिए बेटा, फर्स्ट रिएक्शन इज अ फास्ट रेट रिएक्शन. यस, ओके. और ए वाली रिएक्शन भी क्या है बेटा? इंस्टेंट होती है, फास्ट रिएक्शन. चलिए बेटा, इसका मतलब क्या बेटा? कोई रिएक्शन जैसे कैरी ऑन होती है तो कोई रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्शन ज्यादा समय लेती है ना बेटा. दैट इज स्लो केमिकल रिएक्शन, स्लो चेंज. और कुछ रिएक्शन होते तो झट से चेंज होते हैं. चेंज केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट क्या? चेंज इन रिएक्टेंट. और जैसे चेंज होते तो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं है ना बेटा. जैसे रॉक्स कन्वर्ट इनटू सॉइल, सॉइल इज अ न्यू प्रोडक्ट है ना बेटा. जैसे आयरन आर्टिकल्स, yes, they after they change they convert into the rust, that is one of rusting है ना बेटा. रस्ट होता है, that is a guns, that is a new one there. ठीक है बेटा. जैसे फायर को हमने जैसे कि इनलिट किया है थ्रू द लाइटर, मीथेन गोज टू द बर्न
yes, in form of flames. Just okay, we have get the flames there. That is action, that is a change there, quick change. चलिए वहां पे क्विक चेंज मिला, नीचे वाले में हमें स्लो चेंज मिला. ठीक है बेटा. अगेन वी हैव गेट द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ सिक्स्थ एग्जांपल. देखिए बेटा हम क्या करते हैं बेटा, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट वी हैव ऑब्टेन हियर. Yes, I have write this chemical reaction in morning period on board. I have detected, I have explained it. Actually देखिए बेटा, precipitate we have get it adding the dilute sulfuric acid with barium chloride. Barium chloride को लेकर देखिए बेटा, barium chloride that is a BaCl2, BaCl2 that is a barium chloride. प्लस देखिए बेटा अपना नोटबुक है ना, चलिए नोटबुक पे लिखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, लिखिए. जस्ट यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन के ऊपर इसको नहीं लिखूंगा बेटा. जस्ट वी हैव राइट इन योर नोटबुक बेरियम क्लोराइड दैट इज अ BaCl2. फिर क्या करना है बेटा, जस्ट वी हैव ऐड इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है. तो देखिए बेटा रिएक्शन कैरी ऑन होगी. चलिए बेटा वी हैव टेक द, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा एरो बनाइए, इंडिकेटिंग एरो बनाइए. यस इंडिकेटिंग एरो, यस इट इज डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट की ओर डायरेक्ट करने वाला इंडिकेटिंग एरो रिप्रेजेंट कीजिए. एंड वी हैव कंप्लीट द रिएक्शन. चलिए कंप्लीट कीजिए, क्या मिलेगा बेटा मुझे यहाँ पे. चलिए देखिए बेटा मैं यहाँ पे अभी रिएक्शन लिख लेता हूँ. जैसे देखिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट का मतलब क्या बेटा, विथ हैविंग द वाटर. देखिए सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 हमने यहाँ पे लिया है. देखिए दिखाई दे रहा है बेटा H2SO4. अभी इसमें क्या ऐड करना है बेटा मुझे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पे जैसे कोने बेटा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे बेरियम क्लोराइड ऐड करना है बेटा यहाँ पे बेरियम क्लोराइड. चलिए बेरियम क्लोराइड इनकी BaCl2, इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा BaCl2, एक BaCl2 ऐड करेंगे. जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड, चलिए बेरियम क्लोराइड यहाँ पे लिख दिया मैंने. देखिए BaCl2 लिख दिया. तो देखिए बेटा इसके प्रोडक्ट मिलेंगे. तो इसके प्रोडक्ट क्या मिलते हैं बेटा, बताइए बेटा कौन बता सकता है. देखिए बेटा यहाँ पे मिलेगा मुझे कौन, BaSO4 मिलेगा. क्या मिलेगा बेटा, BaSO4 मिलेगा, दैट इज अ BaSO4. ठीक है बेटा. फिर बाद में रिमेनिंग प्रोडक्ट कौन मिलता है बेटा यहाँ पे, जैसे क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा. एक्चुअली देखिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिया तो यहाँ पे H2SO4 मिलेगा. ध्यान दीजिए बेटा. एक्चुअली ये जो हमें यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिलता है, तो बेरियम सल्फेट एक प्रिसिपिटेट है, और इस प्रिसिपिटेट का कलर यहाँ पे कौन सा मिलता है बेटा, दैट इज व्हाइट प्रिसिपिटेट. वी हैव गेट इट अ व्हाइट प्रिसिपिटेट. समझ में आ रहा है बेटा. कंप्लीट की रिएक्शन अपने नोटबुक के ऊपर. सुन रहे हो मुझे. यस. देखिए बेटा तो कंप्लीट करने के बाद देखिए रिएक्शन समझ में आ गई. जैसे देखिए बेटा यहाँ पे हमने H2SO4 लिया है, जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट में यहाँ पे मिलेगा H2SO4, और यहाँ पे हमने H2SO4 लिया तो प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है. देखिए बेटा चेंज होता है, ध्यान दीजिए. एंड इन दिस वे वी हैव गेट हियर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and we have get the precipitate of the barium sulfate, which color we have obtained it, that is a white. चलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट प्रिसिपिटेट यहाँ पे हमें मिलता है. एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा सानिया. आफ्टर दैट नेक्स्ट, तो देखिए बेटा जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, इस एग्जाम्पल को लेकर हमने यहाँ पे क्या लर्न किया बेटा. यस देखिए बेटा रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल, these are the all familiar example to us, and we have learned here how the changes takes place. Means some changes they require the more time, and some changes they require within a millisecond, instantly they takes place, they show the changes there. देखिए बेटा दैट्स मीन्स दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो कुछ केमिकल रिएक्शन का रेट यहाँ पे ज्यादा होता है, या कुछ केमिकल का रिएक्शन यहाँ पे रेट क्या होता है बेटा, कम होता है. ठीक है बेटा. एक्चुअली इस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर, उसके ऊपर परिणाम दर्शाने वाले फैक्टर, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, उसको डिटेल्स लर्न करेंगे. चलिए बेटा, सो वी हैव गो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द सेकंड स्लाइड. तो देखिए बेटा तो सेकंड स्लाइड में चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें और एक एग्जांपल दूंगा. Yes, it is a very familiar to us. ये तो बहुत ही हमें परिचित एग्जांपल है. जैसे देखिए बेटा, your mom just prepare the curd, just but can you notice,
Yes, according to the season, according to the seasonal change, the curd formation, they require the durations. That is in summer days curd formation, yes, they require the in small period, yes, okay, within a few periods, yes, curds forms, that is a milk converted to the curd. But in a cold period, in winter days, curd formation, they take more time, they require the more time, because in that cold period, that is a winter days, have a coldness into the surrounding, climatic changes cold there. But in the summer days, the climate is hot, and due to that hot, just climates, milk instantly, milk convert into the curd, and that process they require the, जैसे कि देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे स्लो प्रोसेस होती है, जैसे कि झट से यहाँ पे मिल्क कन्वर्ट डज नॉट कन्वर्ट इनटू द कर्ड, दे रिक्वायर सम टाइम ड्यूरेशन। लेकिन समर डे में क्या लगता है बेटा, टाइम ड्यूरेशन कम होता है। समर डेज में मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड, दे रिक्वायर द स्मॉल टाइम ड्यूरेशन पीरियड, स्मॉल ड्यूरेशन तो लगेगा लेकिन स्मॉल ड्यूरेशन टाइम पीरियड होगा, और अच्छी तरह से यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन विंटर डेज, इन कोल्ड डेज, यस, दे रिक्वायर द मोर टाइम पीरियड, मोर टाइम पीरियड। ठीक है ना बेटा, चलिए इसी को लेकर तो देखिए बेटा, यही यहाँ पे दिया है, जैसे कि देखिए बेटा, ड्यूरिंग द विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग द मिल्क इनटू द कर्ड, है ना, मिल्क सेटिंग इनटू द कर्ड, जैसे कर्ड बनने में, कर्ड जैसे कि देखिए बेटा वो सॉलिड लेयर बनता है ना बेटा, जैसे कि उसको अच्छा सा स्मेल होता है, उसकी क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव होती है ना, जैसे कि समर डे में जैसे इम्प्रूव क्वालिटी का, अच्छे स्मेल का, सही सेट कर्ड हमें दिखाई देता है, दैट इज वी हैव गेट द सेटिंग मिल्क इनटू द कर्ड इन अ समर डेज, जैसे ओके, दे रिक्वायर द, जैसे कि स्मॉल ड्यूरेशन पीरियड। बट इन विंटर पीरियड, जैसे देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा, विंटर पीरियड में जैसे कोल्ड होता है तो कर्ड इज नॉट formed or not set, yes okay, early, जैसे जल्दी वो सेट नहीं हो पाएगा, उसे ज्यादा समय वहां पे लगेगा, कब बेटा, इन विंटर डेज में, कोल्ड पीरियड में। तो देखिए बेटा, सही ढंग से इसे हमें लर्न करो। देखिए बेटा, इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना है बेटा, हर एक स्लाइड के स्क्रीनशॉट हमें झट लेते चलना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम, जैसे कि कभी भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे बैठे हुए इसको लर्न कर सकते हैं, चलिए इसके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, after then we have go to the our affecting factor on the chemical reaction, rate of chemical reaction, chemical reaction के रेट के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सो आई हैव शो हियर द रे डायग्रामेटिक सिचुएशन। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे छोटे से, जैसे देखिए बेटा, एक यहाँ पे इंटरेस्टेड जैसे रे डायग्राम यहाँ पे बनाया है, जैसे ओके, एक्चुअली इसी को लेकर अभी देखते बेटा, जैसे which factor is show the effect on the rate of chemical reaction। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे देखिए बीचों बीच में क्या लिया बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो which factor, देखिए बेटा, we have learn here one by one। तो सबसे पहले देखते बेटा, यहाँ पे हमें कौन से फैक्टर में दिखाई देते हैं, जैसे देखिए बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज अ रिएक्टेंट। यहाँ पे पार्टिकल्स यानी कि क्या बेटा, दैट इज अ रिएक्टेंट। जैसे हम कोई रिएक्टेंट लेते हैं, कोई भी रिएक्टेंट, जैसे मेटल के फॉर्म में होगा, कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा, एक्वस, जैसे ठीक है बेटा, जैसे कि मेटल के फॉर्म में, जैसे एक्वस फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे कुछ मेटल का साइज, जैसे कि यहाँ पे एक्वस होता तो लिक्विड होगा, सोल्यूशन में होगा, तो वहाँ पे देखिए बेटा, एक्चुअली वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ पे साइज क्या करेगी बेटा, कंसिडराइज करेंगे वहाँ पे साइज, जैसे सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में हो। चलिए बेटा, तो साइज ऑफ पार्टिकल, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए, तो इसी को लेकर ये फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेगा, जितने स्मॉल पार्टिकल होते हैं उतनी ही रिएक्शन ज्यादा क्या होगी बेटा, ज्यादा फास्ट होते हुए दिखाई देती है, जल्दी होते हुए दिखाई देती है, और पार्टिकल जितने बड़े होते हैं तो रिएक्शन रेट यहाँ पे क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। रिएक्शन, जैसे पार्टिकल छोटे होते तो रिएक्शन रेट यहाँ पे जैसे जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी, और पार्टिकल बड़े हो तो रिएक्शन होने के लिए समय लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज होना नहीं, पार्टिकल बड़े होते तो रिएक्शन होने में यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा, दे रिक्वायर द मोर टाइम। ठीक है बेटा, मीन्स द size of the particles of the reactant, it is a one affecting factor
ठीक है बेटा। चलिए आफ्टर देन नेक्स्ट, जैसे कि कैटलिस्ट भी यहाँ पे क्या करता है बेटा, जैसे केमिकल रिएक्शन के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट करेगा। यस, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली गोज टू डिटेल्स हियर। चलिए बेटा पहले यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट, कौन से पॉइंट अफेक्ट करते हैं, फिर हम इसको डिटेल फिर हम देखेंगे। एक्चुअली देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जितना सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही रिएक्शन रेट क्या होगा बेटा, हाई होगा। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लो होता है, जैसे कि डाइल्यूट होता है, तो रिएक्शन यहाँ पे जैसे कि देखिए बेटा वो धीरे से होगी, है ना बेटा। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन का तो रिएक्शन रेट हाई होता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है तो रिएक्शन यहाँ पे लो होता है। चलिए बेटा, तो रिएक्शंस ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम, दैट इज देखिए बेटा, एक्चुअली यहाँ पे क्या हमें दर्शाना है बेटा, दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। एक्चुअली अभी देखिए बेटा, हम एक एक को यहाँ पे अभी लर्न करेंगे। तो एक्चुअली देखिए बेटा, अभी हम सबसे पहले किसको लर्न करेंगे बेटा, दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखिए बेटा, ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो होते हैं इसी को लेकर अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेचर में क्या होता है बेटा, देखिए हम यहाँ पे जो अलग अलग जो मेटल्स लेते हैं या कोई एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं, तो उस रिएक्टेंट का, उस रिएक्टेंट में जो पार्टिकल जैसे पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे एटम्स होते हैं, जो मेटल होता है ना बेटा, या कुछ मेटल या नॉन मेटल होते हैं, कोई भी जैसे मेटल होते हैं जनरली, तो उस मेटल का जो रिएक्टिविटी रेट होता है क्या होता है बेटा, जैसे कि कुछ मेटल हाई रिएक्टिविटी रेट रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मेटल्स यहाँ पे लो रिएक्टिविटी रेट होते हैं। जैसे यहाँ पे अपनी बुक में दिए वाले एग्जाम्पल, जैसे एल्यूमिनियम को लेकर दिया है बेटा, एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम के बाद दूसरा कौन दिया है यहाँ पे, जैसे जेडेन दिया है ना बेटा। तो एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव कंपैरेटिव टू द जेडेन, दैट इज अ जिंक, ना बेटा। तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन हियर, तो एल्यूमिनियम इजीली रिएक्ट टू द easily react, why, because easily react to the other reactant, because due to the having high reactivity rate, it's okay। and zinc उसका reactivity rate है, वो भी react होगा, but they require the time, more time। चलिए बेटा, एक्चुअली देखिए बेटा, एल्यूमिनियम जैसे हम यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और जिंक को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। चलिए बेटा, नोटबुक के ऊपर तुम ही रिएक्शन यहाँ पे कैरी ऑन करो बेटा, लिखिए रिएक्शन, जैसे लिखना है बेटा। जैसे देखिए बेटा, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए राइट डाउन कीजिए, कीजिए बेटा, कर रहे हो, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया राइट डाउन। चलिए बेटा, किया क्या राइट डाउन किया है, Al प्लस HCl, केले का राइट डाउन, उमेश पाटील, केलं सर, केल्यानंतर बघा काय तर प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा, AlCl2 मिलेगा, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या मिलता है बेटा, H2 इवापोरेट होगा, H2, दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, लिख लिया बेटा। चलिए इधर पूनम लिख लिया, हाँ सर। चलिए, तो लिखने के बाद देखिए बेटा, हमें प्रोडक्ट क्या मिला, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूऑल होता है। तो देखिए बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, दैट इज अ मेटल साल्ट मिलते हैं, और हाइड्रोजन गैस इज यूऑल देयर। चलिए, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है बेटा, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी यहाँ पे अधिक ज्यादा है, जैसे मैक्सिमम है, ज्यादा है, रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे ज्यादा होने के कारण वो देखिए बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से झट से रिएक्ट होगा। जिंक भी रिएक्ट होता है, लेकिन जिंक की रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे लो होने के कारण रिएक्शन होने में थोड़ा समय लगेगा वहां पे। एक्चुअली वहां पे दोनों में मिलने वाले प्रोडक्ट, जैसे जेडन को लेकर भी और एल्यूमिनियम को लेकर भी हम प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं बेटा, मेटल साल्ट। देखिए जेडन भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो मेटल के साल्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या मिलता है बेटा, विच इज द मेन डिफरेंस हियर वी हैव गेट, दैट इज अ reactivity rate of the metal, that is the nature of the metal। ये यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे नेचर, समझ में आ गया बेटा, नेचर फैक्टर काम करता है रिएक्टिविटी रेट के ऊपर। अभी देखिए बेटा, साइज को लेकर, जैसे साइज में हम अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, अपने बुक में दिया वाला एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे हमने क्या लेना है, जैसे कि वी हैव टेक द पाउडर ऑफ दिस शाहबाद फर्श, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, शाबाश, जिंक डस्ट भी ले सकते हैं, वेरी गुड।
आपने बुक में दिया है यहाँ पे, जैसे देखिए बेटा, चलिए बेटा जिंक को लेकर करेंगे। यहाँ पे जिंक डस्ट लिया है, लेकिन जिंक डस्ट लिया है हमने, जिंक का फिल्म नहीं लिया, जिंक स्ट्रिप नहीं लिया। जिंक स्ट्रिप क्या होती है बेटा, जैसे कि हेवी होती है, जैसे सॉलिड है ना बेटा। लेकिन जिंक डस्ट क्या होता है बेटा, क्रश होता है, दैट इज ऑन पाउडर फॉर्म। और जिंक डस्ट हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्ट कर लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, जिंक क्लोरिक है। तो यहाँ पे ZnCl है बेटा, ये थोड़ा लिखने में मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है। जैसे देखिए ये Zn क्या बेटा, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट होगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे Zn क्या मिलेगा, ZnCl मिलेगा। देखिए ZnCl मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलता है, और H2 गैस इवापोरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये रिएक्शन क्या होती है, देखिए ZnCl प्रोडक्ट मिलता है ZnCl2, और H2 गैस इज इवापोरेट देयर सेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेकिन जिंक यहाँ पे हमने किस फॉर्म में लिए बेटा, पाउडर फॉर्म में। और जैसे पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो रिएक्शन इंस्टेंटली कैरी ऑन होती है, रिएक्शन का रेट यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे कि हाई होगा। लेकिन जैसे स्ट्रिप फॉर्म में लेते हैं, स्ट्रिप यानी कि सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, एक्चुअली डस्ट भी सॉलिड है लेकिन क्या है बेटा, क्रश्ड है, दैट्स पाउडर ही है। और यहाँ पे स्ट्रिप क्या होगी बेटा, स्ट्रिप यहाँ पे क्या होती है, एक फिल्म होती है। और फिल्म जैसे हम यहाँ पे जैसे केमिकल रिएक्शन में उसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन में जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे रिएक्शन कैरी ऑन होने में, परफॉर्म होने में हमें समय लगेगा। ठीक है बेटा, एटम जैसे देखिए बेटा साइज ऑफ एटम को लेकर। इसके बाद देखिए बेटा कैटलिस्ट को लेकर। तो कैटलिस्ट में क्या करते हैं बेटा, जैसे कैटलिस्ट का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्ले रोल देयर। वहां पे वो रोल क्या करते हैं बेटा, कैटलिस्ट प्ले द इनडायरेक्ट रोल एंड इंक्रीज द केमिकल रेट ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, विदाउट एनी पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे अलग से एग्जांपल, जैसे डिकम्पोजिशन, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है, इसका हम डिकम्पोजिशन करने वाले हैं। जैसे डिकम्पोज करते तो यहाँ पे हीट रिक्वायर होती है। यस, along that arrow we have show the triangle mark there, changing heat there। तो देखिए बेटा हमें डिकम्पोजिशन के बाद पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है गैस के रूप में। तो एक्चुअली देखिए बेटा पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस रैपिडली। पोटेशियम क्लोरेट क्या होगी बेटा, रैपिडली डिकम्पोज होते हैं। यस, इन प्रेजेंस ऑफ द मैंगनीज डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट, लिख लीजिए बेटा मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट हियर। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एरो के ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन विदाउट यूजिंग द कैटलिस्ट किए हैं। तो कैटलिस्ट यूज ना करते हुए जैसे मैं पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कैरी ऑन करता हूं तो डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन दे रिक्वायर द मोर टाइम पीरियड। बट आई यूज हियर द कैटलिस्ट, व्हिच कैटलिस्ट आई हैव यूज्ड हियर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, that is MnO2। After using this manganese dioxide catalyst as a catalyst in this reaction, in this decomposition reaction, that decomposition goes to instantly, that decomposition reaction क्या होगा बेटा, instantly carry on होगा। चलिए, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, 2KCl plus O2। yes, it goes to evolve there, O2 ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे क्या होगा, इवोल्व होगा। चलिए बेटा, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें मिलता है। आफ्टर देन देखिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निर्भर होता है। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना केमिकल रिएक्शन रेट हाई होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डाइल्यूशन होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लो होगा। तो देखिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे देखिए बेटा द डिकम्पोजिशन ऑफ द, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नथिंग बट H2O2, इसको लेकर देखिए बेटा हम वाटर में जैसे उसको डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, टेक्स प्लेस स्लोली एट द रूम टेम्परेचर, द सेम रिएक्शन ऑकर्स यस एट अ फास्टर। यही रिएक्शन देखिए बेटा, जैसे H2O2 का हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो इसको हमें फास्ट करना है, उसका रेट बढ़ाना है। तो रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे पाउडर के रूप में कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, तो रिएक्शन झट से कैरी ऑन होती है कैटलिस्ट में। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में देखिए जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डाइल्यूट भी लेंगे और कॉन्सेंट्रेट भी लेंगे। चलिए रिएक्शन अभी लिखना है बेटा हमें नोटबुक के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट इन एक्वास, एक्वास कैरी द रिएक्शन, रिएक्शन आल्सो। देखिए बेटा अभी कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 यूज द
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट इन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म। देखिए बेटा बोथ रिएक्शन दे गिव द प्रोडक्ट्स बट दे रिक्वायर द टाइम पीरियड आर डिफरेंट। जैसे एक्वेस लेते तो टाइम पीरियड रिक्वायर द मोर, और जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते थे तो टाइम पीरियड इज अ मिनिमम, दे आर जस्ट इंस्टेंटली रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर भी रिएक्शन जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर यहाँ पे क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है। आपको देन देखिए बेटा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जैसे हाई जितना सारा हाई टेम्परेचर होगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी, है ना बेटा। हाई टेम्परेचर होगा, जैसे कोई भी जैसे प्रोडक्ट्स को देखिए बेटा, जैसे केमिकल रिएक्टेंट को जैसे हम हीट देते हैं तो हीट जल्दी से रिएक्शन कैरी ऑन होती है ना बेटा। कभी भी हमें एक आधा जैसे कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई सॉलिड मटेरियल को, कुछ सॉल्यूट को जैसे वाटर में जैसे सॉल्वेंट में हमें उसे डिसॉल्व करना है, तो डिसॉल्व करने के लिए देखिए बेटा हम जैसे उसको स्टर करते रहते हैं तो डिसॉल्व नहीं होता है, बट वी हैव पुट ऑन ए जैसे कि ग्लिंसिंग बर्नर and we have provide the heat there, that time it's easily dissolve there due to the providing heat, that is the temperature affects, तो टेम्परेचर यहाँ पे अफेक्ट करेगा बेटा। तो ये ऐसे सिंपल से एग्जांपल्स होते हैं, इसे हमें लर्न करना है। चलिए बेटा, तो ये अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं, ये अफेक्टिंग फैक्टर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखिए बेटा आफ्टर देन हम यहाँ पे छोटे से कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है बेटा। तो देखिए बेटा झट से हम इस बातों को देखते हैं क्या हमें याद रखना है, जैसे हमने जो लर्न किया है वही याद रखेंगे ना बेटा। तो देखिए बेटा इसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल चेंज हो, जैसे वन एक हो या दो हो, दो से ज्यादा चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, तो चेंज होता है केमिकल रिएक्शन जब कैरी ऑन होगी तो वहां पे हमें चेंज दिखाई देते हैं, है ना बेटा। वी हैव गेट द चेंजेस, केमिकल रिएक्शन ब्रिंग द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन, ऐसा हमने देखिए बेटा एक सेंटेंस लर्न किया था। चलिए बेटा, सम केमिकल रिएक्शन ऑकर फास्ट, ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं कि वो बहुत ही फास्ट होती है स्पीड, यस, वेयर एज सम केमिकल रिएक्शंस आर स्लो, दैट इज अ स्लो चेंज, है ना बेटा, उसका रेट स्लो होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन का रेट हाई होता है, और ये किस पर निर्भर होता है बेटा, यस फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होता है, और वो फैक्टर्स हमने लर्न किए हैं, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना बेटा, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ द रिएक्टेंट, एटॉमिक साइज ऑफ द रिएक्टेंट, इसके बाद देखिए कैटलिस्ट, टेम्परेचर, ऐसे फैक्टर्स। देखिए बेटा नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टेंट रेट इज इंस्टेंटेनियसली यानी कि तात्काल, इन मराठी झट से रिएक्शन होते हैं एसिड्स को लेकर और बेस को लेकर, क्योंकि एसिड में झट से रिएक्शन कैरी ऑन होती है, बेस में भी झट से रिएक्शन कैरी ऑन होती है। आफ्टर देन देखिए बेटा इन आवर बॉडी, यस ओके, तो बॉडी इज आल्सो वन, देखिए बेटा देयर आर डिफरेंट चेंजेस, ठीक है बेटा। तो अपनी बॉडी भी एक लेबोरेटरी की तरह यहाँ पे काम करती है बेटा। तो एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स, यस दे प्ले द डिफरेंट रोल्स एंड दे शो द, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जैसे डाइजेशन होता है ना बेटा। जैसे देखिए बेटा अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पे क्रिएट्स होते हैं, है ना बेटा, जैसे रेस्पिरेशन हम करते हैं तो देखिए केमिकल चेंज, जैसे कैटलिस्ट को लेकर, कुछ एंजाइम्स को लेकर, यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं बेटा एंजाइम्स को लेकर यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हम, जैसे वो चेंजेस हमें अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं। चलिए बेटा आफ्टर देन देखिए बेटा पेरिसेबल फूड स्टफ, पेरिसेबल यानी कि नाशवंत, ऐसी कुछ चीजें होते हैं बेटा अपने डेली लाइफ में, जैसे फूड होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो पेरिसेबल होते हैं, है ना बेटा, झट से सड़ जाते हैं, डिकेइंग होते हैं, कंपोस्ट होता है उसका, ठीक है बेटा। तो पेरिसेबल फूड स्टफ होते हैं, यस वी हैव प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, हम इसे प्रिजर्व करते हैं, एंड फॉर द प्रिजर्विंग इनटू द लॉन्ग टाइम, यस वी हैव पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर एंड टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन। देखिए बेटा उनमें तो केमिकल चेंज होता ही, लेकिन हम उस केमिकल चेंज को क्या करते हैं बेटा, अवॉइड कर रहे हैं, इसका उसका रेट यहाँ पे कम करते हैं, रेट वहां पे कम कर रहे हैं। देखिए बेटा डिकम्पोजिशन तो होता ही होता है, देखिए इसीलिए हमें रेफ्रिजरेटर में रखे वाले फूड्स या फूड स्टफ खाने के लिए नहीं बताया जाता है बेटा, है ना बेटा। जैसे इंस्टेंटली खाना है, और जैसे देखिए बेटा उसे स्टोर करके बैठना है हमें नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्टोर करेंगे तो देखिए बेटा रिएक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पे रेट क्या होता है बेटा, लो होता है। रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड होगा, रिएक्शन यहाँ पे कैरी ऑन होती है, जैसे टेम्परेचर फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है बेटा, टेम्परेचर कोल्ड होता तो रिएक्शन रेट यहाँ पे स्लो होती है, रिएक्शन होगी लेकिन स्लो होगी। तो फ्रिज में खाए हुए जो हम प्रोडक्ट्स
जो बचा कर रखते हैं, स्टोर कर कर रखते हैं, और खाने के बाद देखिए बेटा तो उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम खाते हैं लेकिन ये खाने के लिए इस एक्चुअली वो सही नहीं है बेटा। स्टोर हमें जैसे ज्यादा चीजें स्टोर ही नहीं करनी है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अभी वेजिटेबल कुक्स क्विकली इन ऑयल रादर देन द वाटर। हम ऑयल में देखिए बेटा, ऑयल में कोई भी वेजिटेबल जैसे कुक करते हैं तो वो जल्दी पकते हैं, जल्दी यहाँ पे कुक होते हैं, यस, रादर देन द वाटर। वाटर में उतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम ऑयल को यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शंस यस आर द प्रॉफिटेबल इन द केमिकल फैक्ट्रीज। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे हमें यहाँ पे फैक्ट्री में क्या होती है बेटा, प्रॉफिटेबल होते हैं। एक्चुअली देखिए बेटा ऐसे जो जलद क्या करते हैं बेटा, वो जलद यानी कि फास्ट, तो यहाँ पे रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए बेटा ऐसे रिएक्शन को हमें क्या करना है बेटा, यूज करना है जैसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उसका रेट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा दूसरा वाला दे ओजोन लेयर, यस, इन द अर्थ दैट इज एटमोस्फियर, ठीक है बेटा। तो ओजोन लेयर क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट टू अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मीन्स डायरेक्ट रेडिएशंस फॉल होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, yes, and these ultraviolet radiations is first absorbed by the ozone layer, ठीक है बेटा। and after the absorption their radiations जो उनकी जो तीव्रता होती है